Morning students. Today we are going to start poem 4 from Orwell, and the title of the poem is Childhood. Children, this poem is composed by Marcus Nathan. As the title of this poem suggests us, childhood. चाइल्डहुड का मतलब सभी को पता है बच्चों. चाइल्डहुड का मतलब बचपन होता है. और ये पोएम मार्कस नेथन ने कंपोज की है. एंड इन दिस पोएम द पोएट is very upset at the loss of his childhood. He remembers his childhood and he becomes very upset. In this poem, the poet thinks of a few stages in his growing up from childhood into maturity. So children, according to the poet, childhood is a special period in the life of everybody, and the poet tells us that he does not know when and where he lost his childhood. देखिए बच्चों, कवि के अनुसार बचपन जो चाइल्डहुड होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ होता है. और कवि अपने बचपन के खो जाने पर बहुत दुखी है. तो इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट ने हमें बताया है कि कब और कैसे उसे पता चला कि उसका बचपन चला गया. He lost his childhood. Now children, we are coming to the poem. See the text of the poem. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be? Was that the day? देखिए, in the first stanza the poet tells us, फर्स्ट स्टैंजा में कवि ने हमें बताया है, कवि कहता है कि when did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया. Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? The poet tells us that was it the day, was it the time when he ceased to be 11. क्या ये वो समय था जब वो 11 वर्ष का नहीं रहा? मीनिंग देयर बाई, जब वो 11 वर्ष से अधिक का हो गया. when he crossed the limits of 11 years. And was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? और क्या ये वो समय था जब कभी कहता है कि मैंने इस बात को जाना, मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि हेल एंड हेवन मीन्स स्वर्ग और नरक ज्योग्राफी की बुक में नहीं पाए जाते. देखिए, जब वो छोटा था, जब अपने बचपन में था, तो इस बात को रियलाइज़ करता था कि हेल एंड हेवन could also be found in geography book. And when he crossed the limits of 11 years, when he became more than 11 years, so he came to know, he realized that
hell and heaven could not be found in geography book, and therefore could not be, और वो जियोग्राफी बुक में हो भी नहीं सकते। वार डेट द डे, क्या ये वो दिन था? तो देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने हमें बताया है कि जब उसे 11 वर्ष के बाद, जब वो 11 वर्ष से अधिक का हो गया, तो उसने इस बात को रियलाइज़ किया कि हेल और हेवन जियोग्राफी की बुक में नहीं पाए जाते हैं और नहीं हो सकते हैं। तो कहता है क्या वो दिन था जब उसे पता चला कि उसका बचपन चला गया। He lost his childhood. In the second stanza, again the poet says, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? तो देखिए, फिर पोएट इस बात को कहता है कि when did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? तो क्या ये वो समय था जब मैंने जाना कि जो अडल्ट होते हैं, जो ग्रोन अप्स होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं, जो ग्रोन अप पीपल होते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं थे जैसे वो दिखाई देते हैं। They talked of love and preached of love. वे प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम के उपदेश देते हैं, but did not act so lovingly. लेकिन वो इतना लविंगली या प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं। Was that the day? क्या ये वो दिन था जब कवि ने जाना कि उसका बचपन चला गया? सेकेंड स्टेंजा में भी पोइट ने कहा है, क्या ये वो समय था जब उसे पता चला कि उसका बचपन चला गया? जब उसने इस बात को रियलाइज़ किया कि जो ग्रोन अप पीपल हैं, जो अडल्ट्स हैं, वो वैसे नहीं हैं वास्तव में जैसा वो दिखावा करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम के उपदेश देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते। Was that the day the poet came to know that he lost his childhood? And again in the third stanza, the poet tells us, when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of the other people, but my own and mine alone? Was that the day? देखिए, फिर कभी कहता है थर्ड स्टेंजा में कि when did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it when I found my mind was really mine? क्या ये वो समय था जब मैंने पाया कि मेरा मस्तिष्क मेरा अपना है? And in whatever way I could use that, और जिस तरह से मैं चाहूँ मैं उसका प्रयोग कर सकता हूँ। Producing thoughts that were not those of others, और मैं उन विचारों के बारे में भी सोच सकता हूँ, मैं उन विचारों को उत्पन्न कर सकता हूँ जो अन्य लोगों के नहीं परंतु मेरे अपने हैं। तो देखिए, when the poet was in the process of growing up, when he became more than 11 years, so he realized, he thought that he would be able to think through his own way. कभी कहता है, क्या ये वो समय था जब मैंने पाया कि मेरा दिमाग वास्तव में अपना था और मैं जिस तरह से चाहूँ उसका प्रयोग कर सकता हूँ। मैं
नए विचार उत्पन्न कर सकता हूँ जो कि दूसरे लोगों के नहीं है, मेरे अपने। मीनिंग देयर बाई व्हेन द पोइट वाज एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। तो दैट वाज द टाइम, दैट वाज द डे द पोइट केम टू नो अबाउट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। ओके स्टूडेंट्स, now come to the last stanza of the poem. In the last stanza the poet tells us that where did my child? It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. That's all I know. अब देखिए, अब तक तो पोइट ने कहा था कि when did my childhood do, when did my childhood do, and in the last stanza the poet tells us where did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ चला गया? The poet is very upset at the loss of his childhood. कभी अपने बचपन के खो जाने पर बहुत दुखी है और कहता है मेरा बचपन कहाँ चला गया? It went to some forgotten place. ये वास्तव में कहीं forgotten place पर चला गया, ऐसे स्थान पर चला गया जो भूला हुआ हो। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो किसी बच्चे के चेहरे में छुपा हुआ। इन्फेंट मीन्स न्यूली बॉर्न बेबी। दैट्स ऑल आई नो। और कभी अंत में कहता है कि मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ। मीनिंग देयर बाई द पोएट इज वेरी अपसेट एट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। According to the poet, childhood is the period of innocence. It is the golden period of human life. So students, I hope you have got this poem Childhood, and this poem is composed by Marcus Nathan. And students, now I am going to tell you some important question answer of this poem. So students, the first question is what according to the poem is involved in the process of growing up. देखिए, कवि के अनुसार जो ग्रोइंग अप का प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, देखिए पोएम के अनुसार द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। कवि के अनुसार ग्रोइंग अप के प्रोसेस में या वृद्धि के प्रोसेस में द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व। जब आदमी बढ़ता है, जब उम्र बढ़ती जाती है, तो सबसे पहले एक आदमी का बचपन खो जाता है। दिस लॉस इज कंपेंसेटेड बाई सम गेन्स which come with adolescence. These are increase in understanding, power of rationalizing and discrimination, as well as a sense of individuality and self confidence. देखिए, जैसे जैसे जब बचपन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद व्यक्ति किशोरावस्था में आता है और उसमें पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, एंड ही वुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एंड चिल्ड्रन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पोएट्स फीलिंग्स टुवर्ड्स चाइल्डहुड। देखिए, बचपन के प्रति कवि की क्या फीलिंग्स हैं। तो द पोएट रिगार्ड्स चाइल्डहुड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। Childhood is a period of make-believe. Children readily accept whatever the elders say. The poet does not feel any regret or sense of loss on losing his childhood. देखिए, कवि की बचपन के प्रति क्या फीलिंग्स हैं, इसमें क्या बताया है पोएट ने कि एक जो बच्चा है वो रेडीली उन सब बातों को एक्सेप्ट कर लेता है जो अडल्ट्स के द्वारा कही जाती हैं, जो हमारे एल्डर्स
के द्वारा कही जाती हैं। और चाइल्डहुड इज़ रियली ए पीरियड ऑफ इनोसेंस। बचपन वास्तव में एक इनोसेंस का पीरियड माना जाता है। And again the poet tells us in the next question. Question is, what did the speaker learn about the existence of hell and heaven? देखिए, स्पीकर अर्थात जो पोइट है वो हेल और हेवन के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या जानता है। तो एज द स्पीकर ग्रू टू बी मैच्योर, जैसे जैसे स्पीकर मैच्योर होता गया, जैसे जैसे कवि मैच्योर होता गया, ही एक्वायर्ड रीजनिंग पावर, वो अधिक से अधिक रीजनिंग पावर एक्वायर करता गया। ही रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक्स और एटलस, और वो इस बात को रियलाइज करता गया, उसने इस बात को अनुभव किया, महसूस किया कि हेल और हेवन किसी भी ज्योग्राफी बुक में या एटलस में नहीं पाई जा सकती और नहीं होते हैं। सिंस दे कुड नॉट बी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड मैप, और ना ही वो किसी वर्ल्ड मैप में कहीं भी लोकेट हो सकते हैं। ही कंक्लूडेड दैट दे डिड नॉट एग्जिस्ट। ही वुड बिलीव ओनली व्हाट ही कुड सी एंड फाइंड। जब वो छोटा था तो वो इस बात को रियलाइज़ करता था कि ज्योग्राफी बुक में स्वर्ग और नर्क हो सकते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने इस बात को महसूस किया कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन एनी ज्योग्राफी बुक और इन एनी एटलस और इन एनी ऑफ द मैप। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डिड द स्पीकर रियलाइज द हाइपोक्रेसी ऑफ द अडल्ट्स। देखिए, पोइट जो उम्र में बड़े लोग हैं उनकी हाइपोक्रेसी के बारे में, उनके बारे में हमें क्या बताता है। तो द स्पीकर नोटिस्ड ए वाइड गल्फ बिटवीन व्हाट अडल्ट्स अपीयर टू बी एंड व्हाट दे एक्चुअली वर इन रियल लाइफ। देखिए, पोइट इस बात को हमें बताता है, स्पीकर इस बात को हमें बताता है कि उसने इस बात के बीच में बहुत अंतर देखा कि अडल्ट्स जो वो रियल लाइफ में दिखते हैं वास्तव में वैसे नहीं हैं। वो ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। दे प्रीच्ड ऑफ लव, टॉक्ड ऑफ लव, बट दे डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। देयर वाज apparent contradiction between their words and deeds। उनके शब्दों में और उनके कार्यों में बहुत अंतर होता है। They talked of love and advised others to love, but they never acted so lovingly. And children, the next question is, how did the realization of being the master of his own and mind help him? देखिए, जब कभी इस बात को रियलाइज़ करता है कि जब वो सोचता है कि उसका माइंड अपना खुद का है और वो जिस तरह से चाहे वो अपने माइंड का यूज कर सकता है, तो इस बात के बारे में कभी क्या कहता है। तो आंसर इज द रियलाइजेशन दैट ही वाज द मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड एंड कुड यूज इट इन एनी वे ही लाइक फिल्ड हिम विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब कभी इस बात को रियलाइज़ करता है कि उसका दिमाग, उसका माइंड उसका अपना है, खुद का है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाता है। ही एट वंस फिल्ड विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें एक प्रकार का आत्मविश्वास आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। ही कुड नाउ थिंक इंडिपेंडेंटली, अब वो इंडिपेंडेंटली सोच सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक नए विचारों के बारे में सोच सकता है। एंड नीड नॉट रिपीट पैरॉट लाइक थॉट्स ऑफ अदर्स, मीनिंग देयर बाई नाउ ही वाज एबल और ही इज एबल टू प्रोड्यूस हिज ओन थॉट्स। सो चिल्ड्रन, दिस इज द पोएम Childhood, and this poem is composed by Marcus Nathan. I hope
you have got this poem, you have understood it. Thank you.